گنبدِ خضرا کی آغوش سطوح کے واسطے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے، علم و عرفان کے ہمیں یا رب دکھا دے راستے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج ہماری 14th ایپیسوڈ ہے، 14واں سلسلہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے 13 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچ چکی ہیں۔ آج ایک اور ٹیم کی تلاش ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ وہ ٹیم کون سی ہوگی۔ آج کراچی کے ساتھ ساتھ گجرات سے آئے ہوئے عاشقان رسول موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ بڑا زبردست مقابلہ ہونا ہے۔ آج بھی اپنے اپنے مقابلے میں اپنے ذہنی آزمائش کی سیگمنٹ میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی طریقہ کار میں کی ہے تاکہ مزید اس کو خوبصورت بنایا جا سکے۔ ناظرین، وقت ہوا ہے آپ سے سوال کرنے کا۔ ہم اپنی اسکرین پر آپ کو روزانہ ایک طریقے سے ترغیب دیتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی تو وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، کیونکہ کوئز اپلیکیشن پر دنیا بھر کے ناظرین کے لیے ہم ایک سوال اپلوڈ کرتے ہیں۔ یہ کوئز اپلیکیشن ہے، آپ اپنے اینڈرائڈ فون سے یا اگر آپ کے پاس iOS کے ڈیوائسز ہیں، ایپل وغیرہ کے ڈیوائسز ہیں، آپ اس پر جا کر فری آف چارج یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں۔ روزانہ آن لائن سوال ہوتا ہے، 4 آپشن دیے جاتے ہیں۔ سوال اپلوڈ ہو چکا ہوگا، جائیے سوال کا جواب دیجئے، اور آخر میں جب قرآن دازی ہوگی تو 5 خوش نصیبوں کے نام آئی ڈیز ہم بتائیں گے، ہو سکتا ہے آج آپ کا نام بھی اس میں شامل ہو جائے۔ تو جلدی کیجئے اور جواب دیجئے اور انشاءاللہ انعام حاصل کیجئے۔ کراچی اور گجرات والوں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ آ کر تشریف رکھیں۔ جی تشریف رکھیں۔ ناظرین، جو آپ کو اپلیکیشن میں سوال کیا گیا ہے وہ میں پڑھ کر بھی دہرا دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی رات میں کہاں قیام فرمایا؟ نمبر 1 غار ثور، نمبر 2 غار حرا، نمبر 3 ام معبد کے گھر، اور نمبر 4 مسجد حرام میں۔ ان چاروں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ اپلیکیشن پر جا کر جو آپ جواب صحیح سمجھتے ہیں اس کو کلک کر دیجئے، اپنا آئی ڈی بھی نوٹ کر لیجئے گا، ہو سکتا ہے اس بار انعام آپ کے گھر تک پہنچے۔ سلسلے کے اختتام پر ہم ایک سوال کرتے ہیں اور پھر شروع میں اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور SMS کرنے والے ناظرین کی قرآن اندازی بھی کرتے ہیں۔ اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان نمبرز پر آپ SMS کریں گے، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اس کی بھی قرآن اندازی کرتے ہیں۔ آئیے کراچی والوں سے تعارف لیتے ہیں، میزبان بھی ہیں، جہاں سلسلہ ہو رہا ہے وہیں کے رہنے والے ہیں، کیسے سلیکٹ ہوئے یہ بھی بتائیں گے، لیکن پہلے ان سے تعارف لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام طارق اسماعیل ہے اور میں ایک سپلائی چین پروفیشنل ہوں، ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتا ہوں ایز اے پلاننگ مینیجر۔ اور ذہنی آزمائش کا سلسلہ چونکہ ایک بہت ہی مقبول ایک عام سلسلہ ہے مدنی چینل کا، اور دعوت اسلامی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ اسلامی بھائی جو تنظیمی اسلامی بھائی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی بھائیوں یعنی ہر شعبے کے اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو میں نے سوچا مجھے بھی اس میں آنا چاہیے، چانس لینا چاہیے، اور کراچی کی جو آڈیشنز کی ڈیٹ آئی تھی اس میں نے آڈیشن دیا اور میں آپ سلیکٹ ہو گئے، اور آج فائنلی لائیو میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا سفر کہاں تک جاتا ہے۔ طارق بھائی مرحبا کہتے ہیں۔ اگلے بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہدایت اللہ، میرا تعلق ویسے سہرہ تھر سے ہے، اور اس وقت میں جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، یہاں کراچی کے ایک جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں۔ تیسرے بھائی۔ السلام علیکم، میرا نام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حسنین الطاری، میں جامعۃ المدینہ فیضان قدمہ مدینہ میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاء اللہ جناب، 2 جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، ایک پروفیشنل اسلامی بھائی ہیں۔ کراچی کی ٹیم میں یہ سلیکٹ ہوئے، کیسے ہوئے؟ آئیے اس کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی کا آج آڈیشن ہم کریں گے، دیکھتے ہیں کون سے خوش نصیب اسلامی بھائی ہماری ٹیم کا حصہ بنتے ہیں۔ مجھے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مجھے اندھیرے ظن و
व शक के शाहराह इल्म में। तकरीबन 25 तलबा हमने इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किए हैं, उनको आगे बुलाया जाएगा। तलाश करना है हमने वो इस्लामी भाई जो ज़हनी आजमाइश के मंच की जीनत बने। याद रहे पिछले साल कराची की टीम फाइनल तक पहुंची थी सीजन 10 में। देखना यह है कि इस बार कराची के कैसे इस्लामी भाई सेलेक्ट होते हैं। हुआ वो मुनकशिफ जो आया दायरा इल्म में। काबिल और हाबिल में कातिल कौन था? काबिल कातिल था, खुदा उसको किस शान से देखता है? जो आंखें हैं महवे लिक़ाए मोहम्मद। हुआ वो मुनकशिफ जो आया दायरा इल्म में। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, इसका मक्ता सुना है। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गए। हसनैन अत्तारी, हिदायतुल्लाह अत्तारी और चौथे हैं अहमद रजा अत्तारी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब कराची मदन की टीम कैसे सेलेक्ट हुई ये भी आपने देख लिया। बारी है गुजरात वालों की। जी जनाब, बारी बारी नाम भी बताएंगे और क्या करते हैं ये भी बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अरमान अत्तारी है और मैं दावत इस्लामी के शोबा दारुल मदीना में बॉयज़ कैंपस गुजरात में एज एडमिन ऑफिसर जॉब करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी अगले भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अमजद एहसान बिन एहसानुल्लाह है और मेरा ताल्लुक गुजरात के एक आबाई गांव बखड़ेवाली से है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना के दर्जा सादिसा में पढ़ता हूँ, मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना गुजरात में। माशाल्लाह, छठे दर्जे के जामिअतुल मदीना के तालिब इल्म हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद नईम साबिर अतारी और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना गुजरात में दर्जा खामसा 6 साल के अंदर पढ़ रहा हूँ। जनाब खामिसा के तालिब इल्म हैं, 5वें दर्जे के तालिब इल्म हैं, 2 जामिअतुल मदीना के तलबा हैं, एक इस्लामी भाई प्रोफेशनल हैं, अपनी जॉब करते हैं। आइए गुजरात की टीम में ये कैसे सेलेक्ट हुए इसके कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, हाँ कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। हमारी टीम मुख्तलिफ शहरों का विजिट करते हुए आज गुजरात शहर में है। हाँ कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में, उठा कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उससे कितने मील दूर चला जाता है? 1 मील दूर चला जाता। रुख दिन है या महर समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्किल खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए जाहिर गया। जो इल्म से हो मुत्तसिफ बुलंदियों से जा मिले, हाँ कलम दवात चल दे रास्ताए इल्म में। जी नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गुजरात के इस्लामी भाई सेलेक्ट हुए तो कैसे हुए। हम रोजाना आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। बहुत सारे नाजरीन के जहन में ये आता होगा कि मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करनी है, जवाब कैसे देना है। आइए आपको बताते हैं इस एप्लीकेशन को चलाने का, डाउनलोड करने का, जवाब देने का तरीका क्या है। ज़हनी आजमाइश क्विज ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए ज़हनी आजमाइश क्विज ऐप। इसके बाद आपके सामने ज़हनी आजमाइश क्विज का आइकॉन शो होगा, जिस पर क्लिक करते ही आपके सामने ज़हनी आजमाइश एप्लीकेशन आ जाएगी, जिसके नीचे लिखा होगा इंस्टॉल। अब आप इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ज़हनी आजमाइश क्विज ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड होते ही आपने ओपन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने लिखा होगा अलाउ ज़हनी आजमाइश क्विज ऐप टू एक्सेस फोटोज, मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। आपने अलाउ पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाएगा। अब हम आपको एप्लीकेशन के फीचर्स और इसके इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं। होम पेज पे मौजूद 4 ऑप्शन। स्टार्ट मतलब अगर आप क्विज ऐप यूज करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। सेटिंग मतलब आप अपने हिसाब से लैंग्वेज का इंतखाब कर सकते हैं। हाई स्कोर जिसमें आप अपने स्कोर नंबर देख सकते हैं कि आपने कितने नंबर हासिल किए हैं।
ऑन लाइन सेगमेंट, जिसमें आपके लिए सिलसिला ज़हनी आजमाइश के ऑनलाइन सेगमेंट शामिल किए गए हैं। ये था होम पेज का मुख्तसर तारुफ। देखिए सिर्फ अगर आप ज़हनी आजमाइश क्विज ऐप डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने सिलसिला ज़हनी आजमाइश के मुख्तलिफ सेगमेंट्स होंगे, जैसे इल्म नूर है, मदनी गुलदस्ता और बहुत कुछ। अपने पसंदीदा सेगमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने 1 से 10 तक लेवल्स होंगे। आप किस लेवल पे ज़हनी आजमाइश क्विज ऐप में मौजूद सवालात का जवाब देना चाहते हैं, उस लेवल पर क्लिक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल सवालात का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें आपके सामने होगा एक सवाल जिसके 4 ऑप्शन में से आपने देना होगा दुरुस्त जवाब। मजीद आपकी आसानी के लिए दाएं हाथ के ऊपर हिंट का ऑप्शन भी दिया गया है, जिस पे क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे और दुरुस्त जवाब देने की सूरत में सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा आपके बाएं हाथ पे एक ऑप्शन होगा जिसके जरिए आप मौजूदा सवालात का सिलसिला स्टॉप कर सकते हैं। रीप्ले मतलब क्विज ऐप जहां तक यूज किया था वहीं से दोबारा स्टार्ट कीजिए। साउंड पर क्लिक करते ही ऐप में मौजूद कलाम के साथ साथ दुरुस्त जवाब और गलत जवाब की ऑडियो सुन सकते हैं। मजीद आपकी परेशानी के हल के लिए हेल्प का ऑप्शन भी दिया गया है, जिसमें आप पढ़कर इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। क्विज ऐप से बाहर आने के लिए क्विट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेटिंग में अपनी सहूलत के हिसाब से बैकग्राउंड, साउंड, कलाम और साउंड इफेक्ट ऑन या ऑफ कीजिए। लैंग्वेज में आप उर्दू या इंग्लिश का इंतखाब भी कर सकते हैं। हाई स्कोर के जरिए आप अपने मौजूदा नंबर देख सकते हैं। ऑनलाइन सेगमेंट में आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके जरिए आप अपना जवाब सबमिट करके ज़हनी आजमाइश सीजन 11 में शामिल हो सकते हैं और दुरुस्त जवाब देने वाले खुश नसीब का नाम प्रोग्राम में बताया जाएगा। इसके अलावा चूज योर फेवरेट टीम में आप अपनी पसंदीदा टीम को वोट भी दे सकते हैं। यही नहीं बल्कि चूज योर फेवरेट कंटेस्टेंट में कौन सी टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये देखकर भी आप वोट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जी नाजरीन, ये जबरदस्त क्विज एप्लीकेशन है। रोजाना ऑनलाइन सेगमेंट में जाकर सवाल का जवाब भी दें। दोनों में से किस टीम के बारे में आप समझते हैं वो आगे बढ़ेगी, उसको आप अपनी राय दें। 6 में से कौन से इस्लामी भाई के बारे में आप समझते हैं कि ये बेस्ट हैं, उसका वोट, उसकी राय भी आप दे सकते हैं। और ज़हनी आजमाइश सीजन 11 खत्म भी हो गया, तो ये एप्लीकेशन अगर आपके पास होगी तो आप रोजाना अपने घर में ज़हनी आजमाइश कर सकेंगे, क्योंकि ये मुख्तलिफ सेगमेंट सवाल आपसे खुद ही होता रहेगा। जवाब देते रहें, नंबर हासिल करते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन सीखने का एक शानदार जरिया है। आइए नाज़रीन बताते हैं कल रात जो मुकाबला हुआ था, कौन सी टीम आगे बढ़ी, कौन सी टीम पीछे रही, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। उलमा की मजलिस के बारे में हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या इरशाद फरमाया? हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि तुम उलमा की मजालिस से अलहदा मत रहो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में उलमा की मजालिस से मुकर्रम कोई मिट्टी पैदा नहीं फरमाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु को दूध का एक प्याला दिया कि सब असहाबे सुफ़ा को पिलाओ। उस प्याले से 70 सहाबा किराम ने दूध पिया, लेकिन दूध फिर भी खत्म नहीं हुआ। बताइए सैयदी आला हजरत ने इस मौजज़ाए मुस्तफ़ा पर कौन सा शेर अता फरमाया? क्यों जनाब अबू हुरैरा था वो कैसा जाम शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले किसकी शफाअत कबूल की जाएगी? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का खुलासा है, सबसे पहले मेरी कब्र शक होगी और सबसे पहले मैं शफाअत करूंगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दाल पहले से मौजूद है। अलिफ। अलिफ। नून। नून। नून नहीं आता जनाब, 5 सेकंड रह गए। मस्जिद कुबा। हाय हाय हाय, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। कितने लोग बहुत पहले पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी बहरहाल 1 नंबर ले लिया है आखिरी सेकंड्स में। मस्जिद कुबा। 23 नंबर है भावलनगर, 29 नंबर है इस्लामाबाद। अब बारी है बड़े ही दिलचस्प सेगमेंट की, समझाइए मगर इशारों से। दे देसी हमको ईमानो यकीन की रोशनी, दे
आंखों से देखा जा सकता है? जी हाँ सर, की आंखों से देखा जा सकता है। क्या वो कोई मस्जिद है? जी नहीं। कोई फल है? जी हाँ, फल है। उसका तेल भी इस्तेमाल होता है? जी हाँ। ये बैल बजाई है बावल नगर वालों ने। जैतून शरीफ। क्या ये जैतून शरीफ सवाल था? बताइए। आपकी मुरादी शय जैतून का फल है। आपका जवाब दुरुस्त है। वाह भाई वाह, बावल नगर वालों का जवाब दुरुस्त हो गया है। 4 नंबर हासिल किए। इस्लामाबाद वालों के 2 नंबर कम भी हुए। थोड़ा पहले नंबर कम ना होते तो ये मुकाबला बड़ा इंटरेस्टेड हो जाता, मगर 2 नंबर से इस्लामाबाद वाले मुकाबला जीत गए हैं। दोनों टीमें आगे आ जाएं। बावल नगर वालों को इंशाल्लाह फिर मौका मिलेगा। जनाब, कल का मुकाबला एक टीम आगे बढ़ गई, एक टीम पीछे रह गई। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। आज देखना है कराची या गुजरात। जनाब शुरू करते हैं। पहले बताते हैं आपको आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। इल्म नूर है, रंगे रजा। सबसे पहले मुकम्मल कीजिए, समझाइए मगर इशारों से मदनी कसौटी। जनाब इसको लेकर चलेंगे, मगर हमने कल आपसे एक सवाल किया था, उसके जवाब और सही जवाब देने वालों में से कुछ के नाम और फिर इंशाअल्लाह कुरानदाजी। जी नाजरीन से कल जो सवाल ये जो कुरानदाजी हो रही है, ये कल हमने एप्लीकेशन की कुरानदाजी भी रह गई थी, तो पहले एप्लीकेशन वाली कुरानदाजी भी कर लेते हैं। कल किसी टेक्निकल वजह से हम एप्लीकेशन की कुरानदाजी नहीं कर सके थे, तो पहले वो कुरानदाजी होगी और उसके बाद यहाँ जो नाजरीन ने SMS के जरिए जवाब दिए थे उसकी कुरानदाजी होगी। पहले एप्लीकेशन वाली कुरानदाजी। जनाब एक नाम है जो फर्स्ट पोजीशन है, इस्लामी बहन का नाम है और बाकी 4 IDs हैं। ये चारों ID वाले अपना नंबर नोट कर लें, हो सकता है आपका नाम भी इसमें हो और आप भी सही जवाब दे चुके हों। अब जनाब यहाँ मौजूद जो SMS के जरिए सवालात आए थे, अब उनकी बारी है। सवाल और फिर जवाब और फिर कुरानदाजी। जी सवाल ये था कि अहले जन्नत की कितनी सफ़े होंगी। इसका जवाब महानमा फैज़ान मदीना जनवरी की सफ़ा 13 पर है। 120 सफ़े होंगी। बहुत सारे सही जवाब आता है, उनमें से कुछ के नाम पढ़ के सुना देता हूँ। मुआविया सियालकोट, आमिर अजीज़ अत्तारी विहाड़ी, बिनते गुलाम मोहम्मद अत्तारी कराची, मोहम्मद अकबर खैबर पख्तूनख्वा, मंशार अत्तारी शेखुपुरा, बिनते अली आरिफ वाला, मोहम्मद सुफियान अत्तारी चिन्योट, बिनते अल्ताफ़ लाहौर, एहतिशाम गुजरावाला, खतीजा नूर अत्तारी हमजा वाला, फसी अत्तारी हैदराबाद, बिनते इरफान खानपुर उम्मे शहजाद कराची, बिनते शफीक पाक पतन शरीफ, नौमान अत्तारी मीरपुर ख़ास, अबू वासला रशीद बक्कर, बिस्मा नूर बिनते अब्दुल गफूर अत्तारी फैसलाबाद, बिनते सैयद मंजूर अली लाहौर, हक नवाज कादरी मियाँ वाली। अब देखते हैं कि किन का नाम निकलता है और ये किन तक तोहफा जाता है। तोहफा जा रहा है आरिफ वाला और बिनते अली है। आप अपने महरम के जरिए हमसे रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप तक तोहफा पहुँचाया जाएगा। जनाब अब ये भी कुरानदाजी हो गई है। अब शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। कराची मदनी वालों से पहला सवाल, मुसीबतों से तंग आकर मौत की तमन्ना करना कैसा है? पच्चीस सेकंड है, मशवरा जरूर कीजिए मगर अपने सेगमेंट के दरमियान कीजिए। मदद का ऑप्शन दोनों टीमों के पास है, जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई एक मुसीबत में मुब्तला हो जाए तो उसे चाहिए कि उसमें सब्र करे। अगर नाचार उसको मौत की दुआ करनी ही हो, अगर मौत को पसंद करे तो उसे चाहिए कि वो ये दुआ करे, अल्लाह
مجھے زندگی دے جب تک میرے لیے زندگی خیر ہو، اور مجھے موت دے جب میرے لیے موت خیر ہو، بہتر ہو۔ جناب موت کی اس طرح تمنا کرنا تو درست نہیں ہے کہ تکلیفوں کی وجہ سے کوئی موت کی دعا کرے، لیکن یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میں میرے لیے خیر ہو، اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ کیا خوبصورت دعا حضرت عمر فاروق کیا کرتے، اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے رب کریم مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت عطا فرما، اور مدینہ منورہ میں نبی پاک کے شہر میں موت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ حضرت عمر کی دعا حضرت عمر کے حق میں کیسے قبول ہوئی؟ آپ کو مدینہ منورہ ہی میں شہادت ملی، اور سبحان اللہ کتنی مبارک جگہ، نبی پاک کے پہلو میں تدفین ہوئی، سبحان اللہ۔ اب باری ہے گجرات والوں کی۔ مریض کی عیادت کرنے والے کو آسمان سے کیا ندا کی جاتی ہے؟ پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ فرمایا گیا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مریض کی یاد کرنے والے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تو اچھا، تیرا چلنا اچھا، اور تو نے جنت کی طرف ایک منزل کو طے کر لیا ہے۔ کیا بات ہے، مریض کی عیادت کو جانا چاہیے، کتنا افضل کام ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ آسمان سے منادی ندا کرتا ہے، تو اچھا ہے، تیرا چلنا اچھا، اور جنت کی ایک منزل کو تو نے ٹھکانہ بنایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال ہے کراچی والوں سے، ہر جمعے کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے؟ کل جمعہ ہے ناظرین، جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، اور ان میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو آزاد نہ فرماتا ہو۔ کیا بات ہے، کوئی ایسا گھنٹہ نہیں گزرتا، یعنی جمعے کے دن ہر گھنٹے 6 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جمعے کے دن دعا کی قبولیت سے متعلق صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے اس سے لے کر آخر نماز کے آخر تک، اور دوسرا قول یہ ہے کہ جمعہ کی آخری ساعت۔ جی جناب، قبولیت اس دعا کی ساعتوں کے بارے میں 2 قول بڑے قوی ہیں، یعنی کس وقت دعا قبول ہوتی ہے، خاص وہ وقت کون سا ہے۔ تو ایک بتایا کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے اس سے نماز ختم ہونے تک، یعنی یہ جو وقت ہوتا ہے خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جمعہ کی جو آخری ساعت ہے، یعنی مغرب سے کچھ دیر پہلے، تو ان دونوں لمحات میں خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سوال نمبر ہے 3 کراچی والوں سے، وہ کون سی 4 عورتیں ہیں جن کے ساتھ اللہ عز و جل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جنت میں فرمایا؟ کیا بات ہے، جنت میں نبی پاک کی نکاح میں وہ کون سی 4 مقبول خواتین ہوں گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے میرا نکاح جنت میں 4 عورتوں کے ساتھ فرمایا۔ وہ ختیجہ ہیں، حضرت مریم بنت عمران ہیں، فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، اور حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں۔ جناب حضرت خدیجہ ہیں، مریم بنت عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم، اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، آج یہ بتائیے ان کا نام موسیٰ کس نے رکھا؟ بڑا انٹرسٹنگ کوئسچن ہے ناظرین، حضرت موسیٰ کا نام موسیٰ کس نے رکھا تھا؟ حضرت موسیٰ کا نام فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رکھا۔ حضرت موسیٰ کا نام حضرت آسیہ نے رکھا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب اب باری ہے کراچی والوں کی۔ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام الف لام میم لے کر آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
یا لے کر آئے الف لام میم، تو جب انہوں نے کہا الف تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جان لیا، انہوں نے کہا لام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقین کر لیا، حضرت جبریل نے فرمایا میم، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کا کرم ہے۔ جناب جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا جان لیا اور کیا یقین کر لیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان راز ہے۔ کیا بات ہے، یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے۔ سبحان اللہ، اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اس کا حبیب جانے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اسراف یعنی فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے حق میں کوتاہی کرنا اسراف ہے۔ اگر جبلے کو بیس، یہ پہاڑ جو ہے یہ سونے کے برابر ہو، سونا ہو اور سارا راہ خدا میں خرچ کر دیا جائے تو یہ اسراف نہ ہوگا، مگر اس میں سے ایک درہم بھی اگر اس نافرمانی میں خرچ کیا تو یہ اسراف ہوگا۔ بہت زبردست تعریف ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اسراف نہیں ہوتا، اس کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اس امت میں سب سے افضل کون سے اولیاء ہیں؟ یقین کی روشنی دیکھ لے جس روشنی۔ اس امت کے اولیاء محمدین میں سے سب سے افضل جو ہے وہ خلفائے اربعہ ہے۔ ان میں جو قرب و معرفت کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مولا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار جو ہے سب سے افضل ہیں۔ کیا بات ہے، چار یار تمام اولیاء، تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اولیاء کی بات تو ہوئی، بتائیے کس امت کے اولیاء سب سے افضل ہیں؟ فرمایا گیا کہ اسی امت یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں۔ ساری امتوں کے اولیاء سے افضل اس امت کے اولیاء ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ساری امتوں سے افضل نبی پاک کی برکت کی وجہ سے یہ امت افضل ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا کی، ہماری نسبت نبی پاک سے ہوئی تو سب سے افضل ہو گئے، کیونکہ آقا سب سے افضل ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جناب کراچی اور گجرات والوں کی تیاری مضبوط ہے، غلطی کوئی نہیں کی ہے۔ اسکور بورڈ دیکھنے سے پہلے حاضرین سے سوال پوچھتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ بڑی تعداد میں ہمارا اسٹوڈیو میں بھی حاضرین ہیں، اور جمعرات ہے چونکہ ماشاءاللہ اجتماع میں بھی لوگ آتے ہیں، تو امید ہے کہ نیچے بھی ہم نے انتظام کیا ہوگا، اور جو ایکسٹرا لوگ ہوں گے ان کو بھی انشاءاللہ ذہنی آزمائش دکھایا جائے گا۔ جی سوال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے جمعہ کے دن کو کیا کہا جاتا تھا؟ انٹرسٹنگ کوسچن۔ کوشش کریں کہ ہمارے آئے ہوئے مہمانوں سے جواب لیں۔ ذہنی آزمائش والے تو ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، ذہنی آزمائش والے ہاتھ نیچے کرتے ہیں۔ جو مہمان آئے ہیں ان میں سے کسی سے لیں۔ جی پہلے یہ بتائیں کتنے دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں؟ انشاءاللہ جدول کے مطابق جامعۃ المدینہ میں چلیں۔ اسلام سے پہلے جمعہ کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ جی ہاں، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ ان کو بھی پیارا پیارا تبرک تحفے میں دیا جائے گا۔ عبداللہ بھائی، کل سے اب تک بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں کہ آج آپ کیا دکھانے والے ہیں، آج کون سا تبرک ہے؟ بہت سارے ناظرین بے صبری سے انتظار کریں۔ ایک تو ابھی میسیج یہ آیا کہ سلسلہ شروع کرنے کے فوراً بعد ہی ہمیں دکھا دیں، فوراً دکھا دیں۔ تو اتنی جلدی بھی کیا، آج کی رات ہے انشاءاللہ، تھوڑی دیر میں جمعرات کی رات ہے، مبارک رات ہے، اور تبرک واقعی ایسا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس کو جو نسبت حاصل ہے، اس کو جو برکت حاصل ہے، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ایک آدھ سیگمنٹ مزید گزار لیں، پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کو کیسے ملے گا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں۔ جہاں کے واسطے جناب گجرات 10، کراچی مدنی 10۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے رنگ رضا۔ جناب اب دو سوال، چار سوال ہوں گے آج۔ 2 سوال اشعار پوچھے جائیں گے، اور 2 سوال میں اشعار نہیں بلکہ ہم آپ کو واقعہ یا حدیث یا قرآن کی آیت بتائیں گے، اور آپ بتائیں گے اعلیٰ حضرت نے کہاں اس کے بارے میں کیا ہمیں شعر عطا فرمایا ہے، اعلیٰ حضرت کی کیا شان ہے۔ خود اعلیٰ حضرت ہی لکھتے ہیں
गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से बोस्तां क्यों ना हो किस फूल की मिदहत में वाम इनकार है गूंज गूंज उठे नगमाते रजा से बोस्तां गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से बोस्तां गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से बोस्तां क्यों ना हो किस फूल की क्यों ना हो किस फूल की हद में वामिल कार है। चले जनाब, कराची वालों से सवाल है। हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गहवारा यानी झूला फिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप बचपन में चांद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते थे तो चांद आपकी उंगली के इशारों पर हरकत करता था। बताइए इस खूबसूरत मौजज़ा, इस खूबसूरत वाक़े पर यकीनन ऐलान नबूवत के बाद जो वाक़यात इस तरह के वो मौजज़ात हैं, बहरहाल इस खूबसूरत वाक़े पर क्या आला हज़रत ने शेर अता फरमाया? चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या है इशारों पर क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना क्या बात है। बताओ फिर क्यों ना आला हजरत से प्यार हो जाए। क्या खूबसूरत बात नबी पाक की शान में लिखते हैं। बारी गुजरात वालों की है, कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत आयत, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तर्जमा है, और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब तुम्हारे हुजूर हाजिर हों और फिर अल्लाह से मुआफ़ी चाहें और रसूल उनकी शफाअत फरमाए तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा करने वाला मेहरबान पाएँ। तफसीर खज़ानुल इरफान में ये मसला भी मौजूद है। कब्र पर हाजत के लिए जाना भी जाऊका में दाखिल और खैरुल कुरून का मामूल है। मसला बादे वफ़ात मकबूलान हक को या के साथ पुकारना निदा करना जायज़ है। कुरान से दो अकीदे के मसले भी पता चल गए। अब बताइए कि ये खूबसूरत आयत की तरफ मेरे रज़ा ने किस तरह इशारा किया। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह फिर कब ये शान रद्द हो कब ये फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर ही है। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ का है गवाह
आला हजरत ने इस आयत की तरफ इशारा जाऊका की तरफ कैसे किया कि हुजूर कुरान में फरमाया गया है हम आए नहीं हम बुलाए गए हैं, और जब बुलाया गया है तो करीम के दर से तो कोई खाली नहीं जाता ना, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है, बुलाया है हम आ गए हैं तो उम्मीद है झोली भर के लौटाएंगे। क्या बात है। कराची वालों का सवाल है, हिजरत की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गारे सौर में रौनक अफरोज हुए। कुफ्फार मक्का ने आपकी तलाश में मक्के का चप्पा चप्पा छान मारा और ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक भी पहुंच गए, मगर गार के मुंह पर हिफाजत खुदाबंदी का पहरा लगा हुआ था। मकड़ी ने जाला बुन दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। बताएं इस खूबसूरत वाक़े को जो नबी पाक की हिफाजत का इंतजाम हुआ, आला हजरत ने किस शेर में बयान किया? जान है जान क्या नजर आए क्यों अदू गिर्द गार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए क्यों अदू गिर्द गार फिरते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जान गए जान क्या नजर आए, जान गए का कलाम है। इस कलाम से तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं। ये वही कलाम है नाजरीन, जब आला हजरत ने कलाम लिखा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जागती आंखों से इन्हें अपना दीदार अता फरमाया। वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे परवाना वार फिरते हैं। आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा एक और शेर सुनाएं। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। गौर करें ये क्या क्या कह रहे हैं आला हजरत। फकीरी किसको अच्छी लगती है, गदाई किसको अच्छी लगती है, मगर फख्र कितना है कि मैं उस गली का गदा हूं, उस गली का भिखारी हूं जहां ताजदारों को खैरात मिलती है। अच्छा ये आज भी मंजर नजर आता है। दुनिया भर के सदर, वजीर आजम, बादशाह मेरे आका के दर पर जब हाजिरी देते हैं तो फकीर बनकर, गदा बनकर हाजिरी देते। तो मैं भी तो उसी गली का गदा हूं, मैं भी उस घर का दर का भिखारी हूं। और अल्लाह ये गदाई ये फकीरी हमेशा हमें अता रखे, उसी दर की लौ लगी रहे, आका के दर की भीख मिलती रहे। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का कराची वालों की यहां तो हो गई ना, अब गुजरात वालों की बारी है। वरफ़अना लक ज़िक्रक, और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। तफसीर खज़ाइनुल इरफान में है, हदीस शरीफ में है, सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल से इस आयत के बारे में दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कहा अल्लाह ताला फरमाता है आपके जिक्र की बुलंदी यह है कि जब मेरा जिक्र किया जाए तो मेरे साथ आपका भी जिक्र किया जाए। आला हज़रत ने कुरान पाक की इस आयत की तरफ कैसे इशारा फरमाया? वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, तेरा
अशार पूछूंगा और वो भी आला हजरत के अशार होंगे। पहला शेर की पहला मिसरा और दूसरे शेर में आपसे दूसरा मिसरा पूछा जाएगा। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फजूं करे खुदा। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब इस शेर की खूबसूरती भी समझिए। दर्द का मजा कहाँ होता है भाई, दर्द में तो दर्द होता है, लेकिन आला हजरत की भी कमाल की बातें हैं कि ये इश्क रसूल का दर्द ऐसा है कि इसका भी मजा कुछ और है। हमें दवा नहीं चाहिए, ये दर्द बढ़ता रहे, ये दर्द बचा लेगा बहुत सारे दर्दों से। क्या बात है आला हजरत की। गुजरात वालों से सवाल है, अब तो न रोक ए गनी आदतें सग बिगड़ गई। मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों। मेरे करीम पहले ही लुकमा तर खिलाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ना घर का रखा ना इस दर का हाय नाकामी। हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया, हमारी बेबसी पर भी न कुछ ख्याल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आला हजरत के बहुत सारे शेर मुझे पसंद हैं, लेकिन ये शेर की तो बात ही निराली है। कमाल की इल्तिजा है, कमाल का अंदाज है, पूरा कीजिए। इलाही सुल्ले रजा जीते जी के मौला ने, सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बहुत खूबसूरत, जबरदस्त तैयारी, कोई गलती नहीं की है दोनों टीमों ने। देखते हैं हाजरीन कैसी तैयारी करके आए हैं। आप लोग तैयार हैं? यही कहती है बुलबुले बागे जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां। क्या खूबसूरत शेर है। चले देखें कौन सुनाता है। मुश्किल लग रहा है। चल जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद हसन रजा तारी कराची से। जी। यही कहती है बुलबुल बाग़े जिना कि रजा की तरह कोई सहर बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाय हुदा मुझे शौक़ी तबए रजा की कसम। मुझे शौक़ी तबए रजा की कसम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या बात है। चले आज बात आला हजरत की हो रही है और आला हजरत की शान पर ही बात हो रही है। एक और खूबसूरत शेर है और क्या आला हजरत ने अपना मर्तबा खुद ही कहते हैं ना कैफियत में बयान किया। वैसे ये शेर तो किसी और शायर ने लिखा, आला हजरत ने अपने कलाम में शामिल किया कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। चलें आप देखें कौन जवाब देता है। जी। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए सिक्के बिठा, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इनको इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बेहतर कौन रिसाला तोहफे में दिया गया है। माशाअल्लाह। नाजरीन आप चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब। स्कोर बोर्ड देखिए और जब आप वापस आएंगे तो आपकी आंखें इंशाअल्लाह ठंडी हो जाएंगी। बहुत प्यारी चीज आपको दिखानी है। जनाब 18 नंबर हैं गुजरात वालों के, 18 ही नंबर हैं कराची मदनी वालों के। मदनी चल के नाजरीन हम जो आपको तबर्रुक दिखाने जा रहे हैं, आइए उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो ये तबर्रुक क्या है। गुंबदे खजरा का आपने दीदार किया, आपको एक सीढ़ी नजर आ रही थी। दोबारा थोड़ा सा दिखा दें ताकि अब हाँ ये सीढ़ी देख रहे हैं हम जिसमें ये इस्लामी भाई चढ़कर रंग वगैरह मुबारक बरकतें ले रहे थे। इस सीढ़ी का हमें एक हिस्सा बल्कि कुछ हिस्से मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप इसका दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, कैसी खास निस्बत जो है गुंबदे खजरा, ये उस सीढ़ी का जो पीस है, ये मुबारक पीस, इसमें रंग भी गुंबदे खजरा वाला मौजूद है। सुभान अल्लाह। यानी ये तो क्या बात है, घर में रखें तो बरकत, कब्र में ले जाएं तो क्या काम देगा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये कैसे मिलेगा? हाँ
पहले हमें कैसे मिला, पहले ये भी कमाल है ना, पहले तो हमें कैसे मिला, सवाल तो ये है। माशाल्लाह मैं जी ये देखिए जो जिसमें लोग ये जो छोटी बापू साइड वाली सीढ़ी है ना, उधर इशारा राइट पे आप देखेंगे जिसमें लोग चढ़े वो वाली नहीं, आप राइट हैंड पे देखिए एक छोटी सीढ़ी है जो गुंबद खजरा जाने के लिए 6 स्टेप्स हैं, ये वो वाली सीढ़ी का पीस है। क्योंकि ये रंग के लिए जो सीढ़ी है ये तो आर्जी तौर पे लगाई गई थी, मगर ये सीढ़ी अब भी गुंबद खजरा पर होती है, लेकिन अरसे के बाद इसे तब्दील किया जाता है। तो माशाल्लाह ये पीस हमारे पास कैसे आया, क्योंकि ये भी बाजू का तशवीश हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कई ऐसे आशिकान रसूल हैं जो हरमैन तैयबैन में रहते हैं, माशाल्लाह कई तो वो हैं जो हरमैन तैयबैन में काम करते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं दावत इस्लामी से। तो फ़ी सबीलिल्लाह इस तरह के जब तबरुकात निकलते हैं और उन्हें भी पता है कि दावत इस्लामी वाले इन तबरुकात से बड़ा ज़बरदस्त नेकी की दावत का फ़ायदा लेते हैं, तो बेचारे वो हमें तलाश करके पहुँचाते हैं। अल्लाह उनको भी इसकी बहुत जज़ा अता फरमाए। अब ये आप तक कैसे पहुंच सकता है, किस किस को चाहिए? या तो मुझे भी चाहिए वैसे, क्योंकि ये मेरी मिल्क नहीं है, मेरी भी मिल्क नहीं है, ये हमारी मजलिस से लिया है और हर बंदा चाहेगा मेरे घर में ये सादत जाए। तो असल में हमने नीयत क्या की है मैं आपको बता देता हूँ, और हमारी नीयत भी अल्लाह जानता है। खैर ये तो हम तबरुक तोहफे में देंगे, लेकिन हम कुछ चाहते हैं कि इसके बदले आप भी हमारे साथ ताउन करें, और वो अल्लाह की रज़ा के लिए होगा। ज़हनी आजमाइश का जो ये पूरा सिलसिला होता है, 32 के करीब सिलसिले होते हैं, 32 एपिसोड हैं, और इस बार हमारी मजलिस का पुरजोर ख्याल ये है कि ज़हनी आजमाइश जो है 31 एपिसोड तकरीबन होते हैं, और डबल 12 सिलसिले ऑडिशन के हुए वो अलग हैं, वो जो हमने शहरों में जाकर किए, और अब इसको 31 को मिलाएं तो ये 55 सिलसिले इल्म दीन फैलाने के 55 प्रोग्राम्स ज़हनी आजमाइश की टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कर लिए हैं, कुछ हमें करने हैं। इस पर मदनी चैनल का ऑलमोस्ट, अगर इसके फाइनल को भी हम मिलाएं, क्योंकि इस बार हमारा जहन है कि हम इसका फाइनल जो है आउटडोर किसी और शहर में लेके जाएं, तो आज हमने ये जो सबसे पहला ऐलान किया है, और तकरीबन कमो बेश जैसे कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, हमने हिसाब किया है, और ये भी कमाल ऐलान है, क्योंकि जो मीडिया को जानते हैं, इतने ह्यूज प्रोग्राम को जानते हैं कि इतने सारे प्रोग्राम्स अगर कोई चैनल करता तो उसके कितने करोड़ खर्च हो जाते। मदनी चैनल का जिसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा है, तनख्वाहें वगैरह तो हमने नहीं मिलाई, लेकिन जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इनामात का खर्चा, टीमों को बुलाने का खर्चा, ये स्टेज बनाने का खर्चा तकरीबन 26 लाख रुपए है। 26 लाख रुपए ज़हनी आजमाइश के इस पूरे, इंशाअल्लाह अगर इस नीयत से आप दें तो अल्लाह ने चाहा जितने करोड़ों नाजरीन देख रहे हैं, ये नेकियां भी आपको अल्लाह ने चाहा मिलेंगी, कितने लोग इल्म दीन सीख रहे हैं, ये सवाब भी आप ले सकते हैं। तो 26 लाख रुपए में यूँ समझिए सीज़न 11 को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, और इसमें इंशाअल्लाह हमारे फाइनल आउटडोर के भी अखराजात शामिल हैं। तो जो आशिकान रसूल हमारी मदद करना चाहें, और हमारे पास इंशाअल्लाह ये 3 है ना बापू जी, हमारे पास ये 3 है, तो मैं ये चाहता हूँ कि 3 26 लाख रुपए में आ जाएं, बाकी 2 26 लाख अगर आ गए तो इंशाअल्लाह हम हमारे मदनी चैनल के फंड में उसे डालेंगे, क्योंकि मदनी चैनल का रोज का तकरीबन 20 लाख रुपए खर्च है। मदनी चैनल पूरी दुनिया में जो दिखाने का खर्चा है रोजाना 20 लाख है, तो मदनी चैनल को भी तो सपोर्ट की हाजत है। कोई एडवर्टाइजमेंट मदनी चैनल पर नहीं आती, हमसे मदनी चैनल कोई पैसे नहीं लेता, मगर दावत इस्लामी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इंग्लिश चैनल अलग है, बंगला मदनी चैनल अलग है, उर्दू अलग है। तो आप हमारे साथ ताउन कीजिए, ये तबर्रुक के बदले नहीं होगा, आप अल्लाह की रजा के लिए रकम हमसे बात कीजिए। नंबर हमारे स्क्रीन पर हैं, आप मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह अगर आप नियत करते हैं तो फिर मैं आपसे खुद रब्ता करूंगा, और हम फिर देखेंगे कि किस तरह ये सब चीज़ें हो पाएंगी। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ने बड़ा नवाजा है बहुत सारे आशिकान रसूल को, दुनिया भर में ऐसे आशिकान रसूल हैं। ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, 26 लाख रुपए डॉलर्स में अगर देखें तो शायद ये ऑलमोस्ट $15,000 बनते हैं, तकरीबन 12-13 हज़ार ये पाउंड्स बनते हैं। तो ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। जो दरहम वाले ममालिक या रियाल वाले ममालिक में हैं तो आपके ये तकरीबन 60,000 दरहम या 60,000 रियाल बनेंगे। लेकिन आप नेकी सोचे, इंशाअल्लाह कितने सारे सिलसिले हुए और हो रहे हैं, और आपको भी पता है कि लाखों करोड़ों नाजरीन देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ये नेकियां आप ले सकते हैं। तबरुक भी इंशाअल्लाह हम आपको तोहफे में फिर इंशाअल्लाह पेश करेंगे। तो इंशाअल्लाह इसके शॉर्ट क्लिप भी बाद में देखें ना, एक तो ज़हनी आजमाइश चल के खत्म हो जाएगा, मगर इसके शॉर्ट क्लिप्स बाद में भी चलते रहेंगे, लोग वायरल करते रहेंगे। अल्लाह ने चाहा इन नेकियों में अल्लाह की रहमत से शामिल रहेंगे। अल्लाह हमें भी सवाब से महरूम ना रखे। हमारी नीयत भी रब जानता है कि अपनी दावत इस्लामी पर जो इतना सारा बर्डन है, ये हम बर्डन ना पड़ने दें। और हर साल ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद पड़ता है कि सीज़न 1 से लेकर 10 तक हमने अपनी दावत इस्लामी का खर्च ज़हनी आजमाइश पर
पर नहीं होने दिया। आशिकान रसूल ने बढ़कर कंट्रीब्यूट किया है और मुझे उम्मीद है कि सीज़न 11 में भी ऐसा होगा। तो आप हमसे रब्ता कीजिए, अल्लाह करीम आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। तो नाज़रीन, ये वो आज का ऐलान था और ये तबरुक हमारे दरमियान है। स्टूडियो वाले तो अपनी आंखों से भी देख रहे हैं। अल्लाह करे कि नबी पाक के गुंबद खजरा की सब्ज़ जो बरकतें हैं हमारी कब्र में भी आएँ और हमारी कब्र भी सर सब्ज़ो शादाब बन जाए। आइए अब स्कोर बोर्ड देखते हैं, हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 18 नंबर है, गुजरात वालों के 18 हैं और कराची मदनी वालों के भी 18 है। नाज़रीन, अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सबसे पहले। मैं ये भी सोच रहा हूं कि सबसे पहले आज मैसेज किसका आता है। हो सकता है सेगमेंट सबसे पहले में सबसे पहले ही कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए और हमारा ये जो हदफ है ये पूरा हो जाए। जो पहले मैसेज करेगा या कॉल करेगा उसी को मिलेगा? देखिए, 3 तो आ जाएंगे तो 3 पहलों को दे देंगे, ज्यादा आ जाएंगे तो मिलके मशवरा कर लेंगे। अच्छे इस्लामी भाई होंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं, सबको इंशाल्लाह तरकीब। मेरे साथ कुछ मैसेजेस तो आ गए मेरे मोबाइल पर, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं प्लीज टेक्स्ट में कर दें। मैं ज़ाहिर ऑडियो मैसेज तो नहीं सुन सकूंगा, टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश करूंगा। सिलसिला करना और मैसेज पढ़ना ये भी एक काम है। बहरहाल अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कराची वालों से सवाल है, सबसे पहले हिजरत करके मदीना मुनव्वरा कौन तशरीफ लाए? बना इसको जहां के वास्ते इल्म का जरिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए। क्या बात है और क्या शख्सियत है हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु। मुझे बड़ी मोहब्बत है उनसे, जब से उनकी सीरत पढ़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से मुशाबहत रखते, बड़े मालदार घराने से ताल्लुक़ था। आका पर ईमान लाए तो घर वालों ने घर से निकाल दिया, तमाम मराआत, तमाम पैसे, तमाम मालो दौलत छुट गया, मगर नबी पाक का दामन थामे रखा और नबी पाक के कहने पर सबसे पहले मदीने शरीफ गए और मदीने पाक में इस्लाम को इस तरह आम किया, ऐसी इस्लाम की रोशनी फैलाई कि फिर आका ही मदीना हिजरत करके आ गए। सुभान अल्लाह। और आज ओहद शरीफ में हजरत सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हजरत मुसअब बिन उमैर आराम फरमा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले सेगमेंट में गुजरात वालों से सबसे पहला सवाल, इस्लाम में सबसे पहले जुमा किस जगह पढ़ा गया? इस्लाम में सबसे पहले जुमा मदीना मुनव्वरा में पढ़ा गया। जनाब, इस्लाम में सबसे पहले जुमा मदीना मुनव्वरा में पढ़ा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, अब बारी है कराची वालों से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से वापसी पर सबसे पहले किन से मुलाकात फरमाते? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले जनाब फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात। क्या बात है, वापस आकर अपनी शहजादी से मुलाकात फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबसे पहले किन लोगों ने अपना इस्लाम जाहिर किया? सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर और हज़रत मुसअब बिन उमैर नहीं है, सुहेब है इसमें, हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह तआला। एक आप नाम भूल गए हैं, हज़रत सुमैया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अम्मार, हज़रत सुमैया, हज़रत सुहैब, हज़रत बिलाल, हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम। जवाब आपका हम दुरुस्त मान रहे हैं। ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना इस्लाम लोगों पर जाहिर किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ नाजरीन। अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 22 नंबर है, कोई गलती नहीं की है अभी तक। अब वो सेगमेंट है जो मुकाबले में पलटा डाल सकता है। 6 नंबर हासिल किए जा सकते हैं और कल भी ऐसा हुआ था कि सिलसिले में बड़ा फर्क आ गया था मुकम्मल कीजिए के बाद। अब देखिए किसके नसीब में क्या आता है। अब बारी है कराची मदनी वालों की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या मुकम्मल करना है।
जी शुरू करते हैं, मुकम्मल कीजिए। जनाब मुकम्मल कीजिए में आइए देखते हैं क्या मुकम्मल करना है कराची वालों को। काफ पहले से मौजूद है। अलिफ, जी अलिफ तो आ गया है। वाव, बताइए क्या वाव आता है? या, जी क्या या आता है? या भी नहीं आता। पच्चीस सेकंड होते हैं आपके पास। नून, नून, चार गलतियां हो गई, फिर मैंने इशारा देना है। मीम, नहीं जनाब, मीम भी नहीं आता। ये एक नातों की किताब का नाम है। हदायत के बख्शिश। इतनी जल्दी भी क्या थी? आप हो सकता है पहले अपने अल्फाज बोलते। अब देखें क्या एक नंबर भी मिलेगा या जल्दी में वो भी चला गया? बताइए। हदायत के बख्शिश, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। एक नंबर हासिल किया है सिर्फ कराची वालों ने। क्या गुजरात वाले नंबर बढ़ा सकते हैं? गुजरात वालों की बारी है। देखिए क्या देखना है इन्होंने। अलिफ, बताइए क्या अलिफ है इसमें? तीन अलिफ आ गए हैं जनाब। या, क्या इसमें या है? वाव, क्या इसमें वाव है? नहीं, वाव नहीं है। जल्दी करें, कुछ तो कहिए। जीम, जीम। ये जल्दी में कहा गया, लगता है कहीं ना कहीं लग जाएगा। लग गया जनाब। दाल, दाल। जी दाल भी आ गया। मेरा ख्याल है कि दाल सही जगह नहीं लगा। मजलिस जरा चेक करे। अच्छा मैं गलत समझ रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़े तो। मीम। एक मिनट रुक जाए, पहले वो थोड़ा सा तस्ही हो जाए। थोड़ा सा एक वर्ड में कोई गलती हुई है मजलिस से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। जी चलें। जी मीम भी आ गया। आपने मीम कहा था, वो भी मिल गया आपको। क्या बात है। नून, नून।
اللہ جناب دو نون آ گئے ہیں. شفا کے راستے صاف اور شفاف دیکھے ہم شفا کے راستے. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں, جلدی کریں. بے با 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 بولا ہے. جی جناب با بھی آ گیا ہے. منہاج العابدین. جناب اگر یہ منہاج العابدین ہے تو گجرات والوں نے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. 4 نمبر کا فرق گجرات والوں نے حاصل کر لیا جناب. ایک بار پھر باری ہے اور اب باری کراچی والوں کی ہے. بتائیے کیا انہوں نے مکمل کرنا ہے. میم. میم تو آلریڈی موجود ہے بیٹا. میم کے علاوہ کچھ بولے آپ. الف. الف جی الف موجود ہے. کل میں نے کچھ طریقہ بھی بتایا تھا اور جلدی کریں. واو. واو. یا. یا. یا بتائیے یا ہے. چلے جلدی 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 جواب دیا کریں. لام. لام. پہلی غلطی کی ہے جناب. جلدی کریں. سین. سین. جی سین بھی آ گیا جناب. عین. کیا عین ہے؟ عین بھی آ گیا جناب. صاد. صاد. جناب حمزہ. کیا حمزہ بھی ہے؟ جناب کراچی والوں نے زبردست کم بیک کیا. عصائے موسیٰ جواب درست دے کر 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے گجرات والوں کی. گجرات والے اب دیکھتے ہیں کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں. بتائیے کیا مکمل کرنا ہے. سب مل کر درود پاک پڑھیں گے. خوشخبری بھی راستے میں ہے, آ رہی ہے انشاءاللہ, وہ بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی. مدنی چینل کے ناظرین, ہر جمعے کی رات 11 بجے ایک بہت ہی پیارا سلسلہ مدنی چینل پر اصلاح اعمال کے نام سے دکھایا جاتا ہے, جس میں رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری مختلف علاقوں میں جو بیانات وغیرہ کرتے ہیں تو ان بیانات کو اصلاح اعمال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کل بھی انشاءاللہ عز و جل 11 بجے ایوان اقبال میں ایک بہت ہی پیارا پروگرام ہوا تھا, اس کا انشاءاللہ عز و جل بیان دکھایا جائے گا. آئیے اس کا تشریحی گلدستہ دیکھتے ہیں.
अरब से चलने वाला इस्लाम तुम तक आसानी से नहीं पहुंचा। ये राह बड़ी कठिन थी, बड़ी तकलीफें नबी पाक ने उठाई। अपने पराये हो गए, इज्जत करने वाले दुश्मन हो गए, सादिक अमीन कहने वाले माअल्लाह बुरा भला कहने वाले हो गए। जिस पर कुरान नाजिल हुआ था वो कुरान पढ़ते तो आप ही का चचा अबू लहब आकर लोगों से कहता माअल्लाह मेरे भतीजे की बात न सुनो। वो अब्रे लुत्फ जिनके साए को गुलशन बरसते थे, यहाँ ताइफ में उनके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। हुजूर बहुत जुल्म हो गया, आप हुक्म कीजिए ताइफ के इन पहाड़ों को मिलाकर इस कौम को तबाह बर्बाद कर देते। आप फरमाते कि मैं अल्लाह की जात से पुरुम्मीद हूं, अगर ये ईमान नहीं लाते तो इनके बाद इनकी औलाद में से लोग आएंगे जो अल्लाह पर ईमान भी लाएंगे, उसकी इबादत करें। एहसान मानो उन साहबा का, एहसान मानो नबी पाक का, एहसान मानो औलिया किराम का। कदर करो अपने ईमान की, कुछ तो दीन की खिदमत कर लो, कुछ तो इस्लाम का नाम बुलंद करने में अपना किरदार अदा करो। देखिए प्रोग्राम इस्लाहे आमाल बरोस जुमा मदीनाए मुनव्वरा में रात 9 बजे, पाकिस्तान में रात 11 बजे मदनी चैनल पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, खुशखबरी ये है, पिछले साल सीज़न 10 में भी हमारे सारे सिलसिलों को स्पॉन्सर किया था लाहौर से, मरकज़ुल औलिया से। और पिछली बार तो कमाल ये हुआ था कि लाहौर की टीम ही सीज़न 10 भी जीत गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हमें ऐलान करने की देर है, अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत दी है लोगों को दावत इस्लामी से। रुकन शूरा याफूर भाई इस वक्त थाईलैंड में हैं। लाहौर से किसी शख्सियत ने याफूर भाई से रब्ता किया, याफूर भाई ने हमसे रब्ता किया, थाईलैंड में मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सीज़न 11 के 26 लाख रुपए देने की एक शख्सियत ने नीयत कर ली है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आपके रिज़्क़ हलाल कारोबार में बरकत दे और इन तमाम सिलसिलों का सवाब आपको अता फरमाए। हमारे पास मज़ीद भी ये 2 तबरुकात मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि मज़ीद 26 लाख आ जाएँ तो हमारे मदनी चैनल के अखराजात में एक भरपूर ताउन होगा। दिन रात मदनी चैनल इल्म दीन सिखा रहा है। अमीर अहले सुन्नत ने मदनी चैनल का साथ देने वालों को कैसी दुआ दी है, आज आरिफ भाई और आसिफ भाई दोनों मिलकर पढ़ेंगे। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, मदनी चैनल के लिए जो साथ दे अत्तार का, उस पे हो रहमत खुदा की और करम सरकार का। सुभान अल्लाह। वैसे मदनी चैनल के लिए देखिए ये तबर्रुक तो यकीनन ये इसके बदले नहीं, नियत ये करें। मैं तो मशवरा दूंगा, मुझे इस तरह भी कि मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई गोल्ड की चेन देना चाहती हैं, कोई इस्लाम भाई, तो मदनी चैनल का साथ दिया करें। मदनी चैनल के लिए कोई अकाउंट नंबर हो तो चला दें और मदनी चैनल के लिए नंबर भी चला दें, ताकि अगर कोई मदनी चैनल को वैसे ही साथ देना चाहता है, देखें ना हमारी तरफ से 1 घंटा ही स्पॉन्सर हो जाए। मिसाल देता हूं, अगर मदनी चैनल पर रोज के 20 लाख रुपए का खर्चा है तो मेरे हिसाब से तकरीबन 75,000 रुपए 1 घंटे का खर्चा है। 1 घंटा मदनी चैनल का स्पॉन्सर कर लीजिए। अब इसको और थोड़ा सा नीचे ले आते हैं तो अंदाजा ये तकरीबन मैं सब चीजें अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूं कि 1200 रुपए मदनी चैनल की 1 मिनट का खर्चा हो गया। तो चले 1 मिनट ही मदनी चैनल मेरी तरफ से खर्चा मेरी तरफ से हो जाए, इतने घंटे में अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए स्पॉन्सर कर दूं। हाँ, तो कोशिश करें कि इसमें नफली सदकात ही दें। और ये स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपनी कॉल भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो मदनी चैनल आपका है। अल्लाह करे कि इतने सारे आशिकान रसूल मदद करें कि मदनी चैनल का सारा ही खर्चा स्पॉन्सर हो जाए, क्योंकि हमने अब किड्स मदनी चैनल भी शुरू करना है, आगे जाके उसके लिए भी अखराजात करने हैं। तो फिलहाल मदनी चैनल जो चल रहा है इसमें अपना
साथ ज़रूर दीजिए। अलबत्ता हमने जो ऐलान किया है कि जो 26 लाख रुपए की रकम देंगे इंशाअल्लाह, तो ये तबरुक इंशाअल्लाह उनके घर पर उनके और अच्छा हुजूर ये बता दें कि ये जो आपने कहा कि 26 लाख रुपए अगर कोई दे दे और अगर ये 26 लाख वाले आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इसमें यूँ करेंगे कि जो ज़्यादा पैसे देगा, नहीं इंशाअल्लाह वो ज़्यादा हो जाए फिर उनसे खुद ही हम बात कर लेंगे, आप उसकी टेंशन ना लें। आप कॉल तो करें, मैं 26 लाख वालों से खुद बात करूंगा इंशाअल्लाह, हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मिलजुल के करेंगे इंशाअल्लाह। चले जनाब, बहुत खूबसूरत सेगमेंट ये भी पूरा हुआ, हमारा जो ऐलान था अल्लाह की रहमत से वो भी पूरा हो गया। अच्छा ये पूरा नहीं हुआ अभी, तो अभी दोनों के, अच्छा इनका रहता है, गुजरात का रहता है, बताइए क्या मुकम्मल करना है। जी जनाब, लाम आ गया है, अलिफ जी बताइए। दो दो अलिफ आ गए जनाब। या वाओ। मजलिस जरा ये देख ले कि ये अलिफ लिखने में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। वाओ भी आ गया, चले जनाब। मीम मीम देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते। जनाब जीम, जीम, क्या इसमें जीम है? नहीं जनाब, जीम भी नहीं है। मुकाबला करीब होता जा रहा है, 4 गलतियों के बाद मैंने इशारा भी देना है। दाल, दाल, क्या इसमें दाल है? दाल भी नहीं है। ये मकतबतुल मदीना का मदनी मुन्नों के लिए लिखे हुए किसी एक रिसाले का नाम है। अब आपका सही जवाब आपको 1 नंबर दिलाएगा। अब आपने सिर्फ नाम लेना है, अब आप कुछ कह नहीं सकते। जल्दी करें। नूर वाला चेहरा। बताइए क्या ये नूर वाला चेहरा रिसाला है? नूर वाला चेहरा, जवाब दुरुस्त दे दिया है, 1 नंबर हासिल किया जनाब। फिर मुकाबला गालिबन बराबर हो गया है, कभी इस तरफ जाता है मुकाबला, कभी इस तरफ जाता है, लेकिन मुकाबला फिर बराबर हो गया। एक बार फिर देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। सब मिलके दुरूद पाक पढ़ेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा मुझे बताया गया कि नीचे भी बड़ी तादाद में आशिकान रसूल मौजूद हैं और वहाँ हमारे इस्लामी भाई भी मौजूद हैं। ये माशाल्लाह फैज़ान मदीना में स्टूडियो में नहीं बल्कि नीचे बैठे हैं। मरहबा कहते हैं आप सबको। वहाँ मौजूद है इस्लामी भाई सवाल पूछने के लिए, इनसे कौन जवाब देंगे? आतिफ भाई आपकी आवाज़ ज़रा सुनवाइए, माइक वगैरह ठीक है? चलें, अभी तक शायद वो पहुंचे नहीं है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपसे भी सवाल करेंगे और आपसे भी तो आपको भी तोहफा देंगे इंशाल्लाह। जनाब स्कोर बोर्ड दिखाएंगे हमें। जनाब 28 नंबर बराबर बराबर हैं। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन जनाब वो सेगमेंट तो बड़ी प्यारी मालूमात है और वो है अनोखी मालूमात। आइए देखते हैं अनोखी मालूमात। प्रोग्राम है ज़हनी आज़माइश सीजन 11 और सेगमेंट है अनोखी मालूमात।
Today we will discuss the ship of the desert, सहरा का जहाज यानी ऊंट। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की एक तहकीक के मुताबिक ऊंट 6 माह तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। कुरान मजीद में आया तो क्या वो ऊंट को नहीं देखते कि कैसा बनाया गया? वाकई if we learn some interesting facts about camel, they are unique। बड़ी मुनफरिद खसूसियात है इस जानवर में। जब सहरा में रेत का तूफान आ जाए, ऊंट के पास एक ऐसी खास सलाहियत होती है कि वो अपने नाक के नथनों को यानी नॉस्ट्रिल्स को बंद कर सकता है। पलकें और भवें हमारी तो एक एक होती हैं यानी आईलिड्स और आई लैशेस, लेकिन ऊंट के 3 सेट होते हैं पलकों के और 2 सेट होते हैं भवों के, ताकि वो अपनी आंखों को रेत से बचा सके। इनके मोटे होंठ कांटेदार झाड़ियां और पौधे खाने में मदद देते हैं जो दीगर जानवर नहीं खा सकते। अरबी जबान में ऊंट के लिए 100 से ज्यादा अल्फाज मौजूद हैं। इंसान ऊंट को एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं यानी सामान उठाने और सफर करने के लिए, और यह सिलसिला हजारों सालों से चलता चला जा रहा है। ऊंट 300 किलो तक वजन उठा सकते हैं और भागते भी बहुत तेज हैं, 40 मील फी घंटा यानी घोड़े की तरह। ऊंट की एक बड़ी खुसूसियत उसका कोहान है, हम्प। ये 2 कोहान वाले भी होते हैं और 1 कोहान वाला भी होता है। ये समझा जाता है कि कोहान में पानी होता है, नो, कोहान में फैट्स होती हैं, चिकनाई जो वक्त पड़ने पर पानी और खाने में तब्दील हो जाती हैं। एक कोहान में तकरीबन 37 किलो तक फैट्स मौजूद होती हैं। लेकिन जब रीफिल की बारी आती है यानी जब ऊंट को पानी पीने का मौका मिलता है तो ये 30 गैलन पानी यानी 113 लीटर पानी सिर्फ 13 मिनट में पी जाता है। ऊंट से हम गोश्त हासिल करते हैं, चमड़ा हासिल होता है और गोश्त के साथ साथ दूध भी हासिल होता है। ऊंट का गोश्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर और सांस की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। ऊंट के खून के लाल खलिए यानी रेड ब्लड सेल्स दीगर जानवरों से मुख्तलिफ होते हैं। दे आर ओवल शेप एंड एंश्योर स्मूथ ब्लड फ्लो। ये बैजवी शक्ल के होते हैं ताकि खून का दबाव और खून का फ्लो सही रह सके। मदनी चैनल के नाजरीन, आज की बुक कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, एक शोहरा आफाक और मास्टरपीस हैंड राइटिंग। इस मौजू पर ऐसा मवाद शायद ही आपने पढ़ा हो। मेरे शेख तरीकत की ऐसी तहरीर जो कि बहुत से स्कूल्स में और तालीमी इदारों में निसाब के तौर पर भी पढ़ाई जाती है। और आज की एप्लीकेशन IT डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी की पेशकश मौलाना इलियास कादरी इस्लामिक स्कॉलर। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अमीर अहले सुन्नत के बयानात, शॉर्ट क्लिप्स, आपकी ऑटोबायोग्राफी और बहुत कुछ जानने का मौका हाथ आएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, अनोखी मालूमात सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। वक्त हुआ है वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। जनाब, आज वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग में वतन की ज़बान तो नहीं मगर अहले वतन भी जिस ज़बान से बड़ा प्यार करते हैं और वो ज़बान हमारे आका की ज़बान है, वो ज़बान कुरान की ज़बान है, वो ज़बान जन्नत की ज़बान है, वो ज़बान अरबी ज़बान है। इंशाअल्लाह उसमें हम आज सुन्नत और आदाब सीखेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय्युहल अहिब्बतुल अइज़्ज़ा व मुशाहिदी क़नात मदनी, नुरहिबु बिकुम फ़ी बरनामजिकुम मुसाबक़तुल मालूमात व हुवा इबारतुन अन मुसाबक़तिन इल्मिय्यतिन सक़ाफ़िय्यतिन दीनिय्या अला शक्ल मुसाबक़ातिन बैन फ़िरक़ तहतवी अला अस्इलतिन व अजविबा सनतअल्लमु फ़ी हलक़तिल यौम व नतदारसु फ़ी आदाबिद दियाफ़ा मिन खिलाल अफ़दली व अजमली व अहब्बी लुगातिल आलम अला वहिया लुगतुल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व लुगतुल कुरआनिल करीम व लुगतु अहलिल जन्नह अल लुगतुल अरबिय्या। अय्युहल अहिब्बा, हुनाका सुननुन व आदामुन लिद्दियाफ़ा व कैफ़िय्यति इस्तिक़बालिद दुयूफ़ अल्लती ज़करहल उलमा यंबगी अलैना तअल्लुमुहा व तत्बीकुहा लिअन्नहा मुस्तमद्दतुन मिनल कुरआनि वस्सुन्नह लिज़ा सनज़कुरु लकुम बअदम मिनहा। अल अदबुल अव्वल इकरामुद दैफ़ि सुन्नतु सय्यिदिल मुरसलीन सलवातु रब्बी व सलामुहु अलैहि। अल अदबुस सानी इकरामुद दैफ़ि यस्तजलिबुल बरकत वल खैर।
الادب الثالث اکرام الضیف سبب لمغفرۃ الذنوب قال النبی الاکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل الضیف علی القوم دخل برزقہ واذا خرج خرج بمغفرۃ ذنوبہم. الادب الرابع قال الحبیب المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان من السنہ ان یخرج الرجل مع ضیفہ الی باب الدار. ایک سنت یہ بھی ہے کہ مہمان کو واپسی میں دروازے تک چھوڑنے آنا چاہیے. الادب الخامس اکرام الضیف سبب لسعۃ الرزق وبرکتہ. الادب السادس ان یخدم المضیف بنفسہ اقتداء بسیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام فہو علیہ السلام اول من استضاف فی الدنیا. الادب السابع اکرام الضیف سبب لرحمہ والفضل من اللہ تعالی. الادب الثامن ان یلقى المضیف ضیفہ بوجہ طلق. الادب التاسع الا یؤخر المضیف اکرام الضیف. الادب العاشر الا يقدم الضيف الاعتذار بأنه شبعان جدا بل يصبر ويأكل شيئا مما قدم له من الطعام. الادب الحادي عشر الا يطلب ولا يسأل الضيف عن شؤون المنزل الا عن اتجاه القبلة والحمام ان احتاج الى ذلك. الادب الثاني عشر ان يجلس الضيف حيث يجلس. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم جميعا للعمل بآداب الضيافة. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. اب حاضرین سے سوال ہوگا اور عربی میں سوال ہوگا. والآن ایھا الاحبۃ الکرام نوجہ اسئلۃ للحاضرین بارک اللہ فیکم جمیعا. السؤال من یذکر لنا اربعۃ آداب للضیافہ مما ذکرناها آنفا. 4 آداب بیان کریں گے عربی میں جو ہم نے مہمان کے آداب آج ماشاءاللہ 13-14 آداب ہم نے سنے ہیں ان میں سے کوئی بھی 4 بیان کر دیں. جی عربی مشکل یا شیخ؟ لا مشکل ہے واللہ مشکل، لا مشکل ہے. شوف تفضل. ماشاءاللہ. اول اسم بعد جواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر رضا میرا نام ہے، میں درجہ ثانویہ کا طالب علم ہوں. جی تو آپ کے سامنے میں انشاءاللہ عز و جل 4 سنت آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل مہمان کی عربی میں. اکرام الضیف سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. ماشاءاللہ. اکرام الضیف سبب لسعة الرزق و اکرام الضیف سبب لمغفرتی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام الضیف اذا دخل الرجل داخل برزقه واذا خرج فخرج بمغفرته. تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہے لیکن کافی حد تک جواب درست دے دیا ہے. اجابت صحیحۃ، جواب درست ہے. انہیں انشاءاللہ عز و جل بغداد معلّہ کی تسبیح اور 14 مبارک پانیوں کا مجموعہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب بہت ہی پیارا عربی کلام، کیا بات ہے. لیکن اس سے پہلے عربی میں مدنی مقصد دہرائیں گے انشاءاللہ. الہدف السامی لمرکز الدعوت الاسلامیہ علیہ محاولۃ اصلاح نفسی و جمیع اناس العالم انشاءاللہ عز و جل. سبحان اللہ. آج وہ کلام پڑھیں گے کہ جب نبی پاک مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے نا تو وہاں کی بچیوں نے نبی پاک کو جس نغمے کو گنگنا کر، جس کلام کو پڑھ کر استقبال کیا تھا، انشاءاللہ وہ مل کر پڑھیں گے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. طلع البدر علینا من ثنیات
جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دا طلع بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا صلو علی الحبیب صلی اللہ. کیا خوبصورت زبان ہے، سمجھ نہ آئے پھر بھی پیاری لگتی ہے. آقا کی زبان جو ٹھہری، لغت القرآن جو ٹھہری. بہرحال عربی زبان سیکھنی بھی چاہیے اور اس سے پکی محبت بھی ہونی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عربی آقا کا فیضان نصیب فرمائے. جناب وقت ہوا ہے، اب انشاءاللہ ہمیں اپنے مدنی انعامات کا محاسبہ بھی کرنا ہے، کچھ نعت خوانی بھی ہوگی اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی لیں گے. دونوں ٹیمیں بھی آگے آ جائیں انشاءاللہ. نعت خواہ اسلامی بھائی بھی آگے آ جائیں. آج تو نعت ہم نے آصف بھائی سے اپنی پسند کی سننی ہے انشاءاللہ. آ جائیں مدنی منیا یہاں بیٹھ جائیں، بالکل آرام سے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے. اچھا نیچے اگر عاطف بھائی پہنچ گئے ہیں تو وہ بھی بتائیے آواز ان کی. اگر جی عاطف بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں الحمدللہ کثیر اسلامی بھائی نیچے جو ہے وہ یہاں فیضان مدینہ کے صحن میں موجود ہیں جامعۃ المدینہ. چلے میں ایک سوال ذرا خوبصورت سے یہ کرتا ہوں کہ یہ جو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس شعر کے اندر ایک مقام کا ذکر ہے کہ کہاں نبی پاک کا استقبال ہوا تھا. وہ مقام بتا دیں. چلیں کوئی بتائیں گے نیچے؟ جی جی موجود ہیں بالکل. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مقام سنیت الوداع ہے مکہ مکرمہ کے اندر. سنیت الوداع تو ٹھیک کہہ دیا، مگر آقا کا یہ استقبال مدینہ منورہ میں ہوا تھا. یہ قبا کی وادی کے قریب. آج بھی مقام اگر یہ دیکھنا ہو نا ناظرین، الحمدللہ ہم نے مدنی چینل پر اس کو کئی بار دکھایا بھی ہے زیارات مقامات مقدسہ سلسلے میں. یہ بالکل مسجد جمعہ کے سامنے سنیت الوداع کا مقام ہے اور پرانی سی عمارت آج بھی موجود ہے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں، یہ مدینہ منورہ میں. تحفہ دے دینے جناب انشاءاللہ. متورک پانیوں کا مجموعہ اور سنت اور آداب، ماشاءاللہ پیاری کتاب انشاءاللہ. ماشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ عاصم بھائی ہیں اور بہت پیارے کلام پڑھتے ہی ہیں، لیکن ایک کلام پچھلے دنوں نے بہت اچھا پڑھا تھا اور میں نے نیت کی تھی جب یہ آئیں گے تو ان سے وہی کلام سنیں گے. لم یاتی نذیرو کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جان. اعلیٰ حضرت کا کلام ویسے ہی یہ کمال کا ہے اور ماشاءاللہ یہ پڑھیں گے تو اور ہمیں انشاءاللہ لطف آئے گا. درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی سانسوں میں کے وقت جب میری سانسوں میں میری نظر کے سامنے بولو میری نظر لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی